Assalamu alaikum and a very good afternoon to everybody joining us today. I am Laiba, a clinical psychologist and STAR project lead at Pehchan. On behalf of Pehchan organization, I welcome you all to our first webinar, From Playground to Screens, Is Children Wellbeing at Risk, under our Screen Time Awareness and Regulation Project 2026. Before we begin, I would like to invite Mr. Abbas to recite a few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Jazakallah. Thank you so much, Mr. Abbas, for that beautiful recitation. Now, to briefly set the context for today's session, I would like to share an overview of STAR project. The STAR project, Pehchan's Screen Time Awareness and Regulation Initiative, aims to promote safe, healthy, and developmentally appropriate screen use among children and adolescents in Pakistan. It raises awareness about the risk of unregulated screen use, provides practical strategies for parents, caregivers, and educators, and builds capacity of professionals to guide safe digital engagement. Through our webinars, workshops, and online resources, STAR seek to protect children's physical, psychological, social, and online well-being. So before we move ahead, I would like to introduce our moderator for today, Dr. Naeem Zafar. Dr. Naeem Zafar is distinguished pediatrician, child right advocate, and development consultant with over 25 years of dedicated service in the non-profit sector. He currently serves as the president and honorary CEO of Pehchan, chairman, board of directors at Pakistan Alliance for Early Education, and convener of Child Right Group Pakistan Pediatric Association. In these roles, he leads impactful initiatives focused on child protection, child right, and well-being. He is currently a board member of International Society for Child Pediatric and Child Health and has been a board member of International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. A past president of Pakistan Pediatric Association Punjab and continues to contribute at both national and international levels through his affiliations with leading organizations and government committees. His contributions have been widely recognized, earning his prestigious honors, including the Everyday Hero Award from International Center for Missing and Exploited Children USA, Ispagan Multidisciplinary Global Award, the President of Pakistan Community Pediatrician Gold Medal Award, and Vasti Memorial Gold Medal from PPA. He has pioneered child protection systems in Pakistan, including prevention of online violence against children. With extensive experience in research, training, and policy development, he remains committed to strengthening child protection systems, primary mother and child health services, and positive parenting practices. We are truly honored to have him as our moderator today. Before we move ahead, also it's a request to all the participants कि आपके साथ अभी चैट में जो है वो हमारा प्री वेबिनार फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा. ऑल्सो एक और गूगल फॉर्म जहां पे अपना नेम और ईमेल एंटर करनी है फॉर ई सर्टिफिकेट्स. मेक श्योर कि आप उसको फिल कर दें. With that, I warmly welcome Dr. Naeem Zafar to welcome you all and provide an overview of today's session. Assalamu alaikum. I hope you can hear me well. So, welcome to this first webinar on screen time. मौके को गनीमत जानते हुए मैं थोड़ा सा पहचान का तारुफ भी कराता जाऊँ. पहचान प्रोटेक्शन एंड हेल्प ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज एंड नेग्लेक्ट एक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है जो 22 साल से काम कर रहा है और हॉस्पिटल बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स, कम्युनिटी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सिस्टम्स और मेंटल हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है. इसी के तहत हमने एक स्टार प्रोग्राम शुरू किया जिसका मतलब है स्क्रीन टाइम अवेयरनेस
एंड रेगुलेशन। मकसद इसका ये है कि आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को स्क्रीन की वजह से, मोबाइल्स की वजह से या कंप्यूटर यूजेज की वजह से कितने नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए ये एक पूरा प्रोग्राम है जो कि इन पर्सन भी होगा, जिसमें कि ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, और ये तमाम सोशल वर्कर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, खासतौर पे पेरेंट्स के लिए, और उसके साथ साथ कुछ कोर्सेज भी डेवलप करेंगे इस साल। और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी हम ये वेबिनार सीरीज शुरू कर रहे हैं और सोशल मीडिया और ऑनलाइन कोर्सेज के तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये जो हमारा वेबिनार सीरीज है, ये 3-3 की 2 सीरीज हैं। जो पहली सीरीज है वो हमें ज्यादा बताएगी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उसके फवायद नुकसान की तरफ, और जो दूसरी सीरीज है वो हमें बताएगी ऑनलाइन नुकसानात की तरफ हम जाएंगे, जिसमें कि ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऑनलाइन बुलिंग और इस तरह की तमाम चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये हम बताते हुए आज का जो हमारा पहला वेबिनार है उसकी मैं थोड़ी सी बात करता जाएं कि आज हमें वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से ये जो है फ्रॉम प्लेग्राउंड्स टू स्क्रीन्स इज चिल्ड्रंस वेलबींग एट रिस्क, इसके ऊपर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि स्क्रीन टाइम आज की दुनिया में क्या ऐसा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के सारे कंसिडर करेंगे। और उसके लिए हमने दावत दी है हमारे बहुत देरीना दोस्त और अपनी फील्ड के बहुत माहिर ब्रिगेडियर मोहम्मद राना साहब को। तो मैं वापस लाइबा से कहूँगा कि मोहम्मद राना साहब को जरा इनवाइट कर लें उनकी टॉक के लिए। मकसद हमारा ये होगा कि उनके हम ये तकरीबन 25 मिनट की टॉक है जो कि एक शेर हासिल बहस करेंगे, और उसके बाद फिर हमने बहुत सारा टाइम रखा है सवाल जवाब के लिए। तो सवाल जवाब के ऊपर हम बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे और आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका जवाब प्रोफेसर मोहम्मद राना साहब दे देंगे और फिर हम उसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। And thank you, Dr. Naeem. So it is my pleasure to introduce our esteemed speaker, Professor Dr. Muwaddat Hussain Rana. Dr. Muwaddat is a professor of psychiatry and behavioral sciences, a recipient of Sitara Imtiaz and a gold medalist, with extensive contributions to the field of mental health, both nationally and internationally. He is a member of National Task Force for Mental Health, Government of Pakistan, and served as the chairman of Healing Pride Pakistan. Dr. Muwaddat has held several prestigious positions, including Honorary Chair of Department of Behavioral Sciences and Adjunct Professor at the University of Health Sciences, Lahore. Internationally, he has been associated with Robert Gordon University in the UK and is also a consultant to the World Health Organization. With over 18 years of experience as a trainer at leading institutions such as National School of Public Policy, Dr. Muwaddat has been a visiting faculty member at renowned universities including LUMS, NUS, and Bahria University. Dr. Muwaddat continues to actively contribute through teaching, training, research, and clinical work both in Pakistan and abroad. We are very privileged to have him today to enlighten us on the important topic of children's screen time and well-being. Welcome, Dr. Muwaddat. Handing it over to you. Thank you very much. Thank you very much, my very dear friend, Dr. Naeem Zafar Saab. It's a great honor and privilege to be associated with any project in which I see your great name, mashallah, and your huge contributions towards the cause. ये जो मेरी और डॉक्टर साहब की मोहब्बत है, इसकी बुनियाद सिर्फ ये नहीं है कि वी आर कंटेम्पररीज। इसकी मोहब्बत की एक वजह, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो मेरे दिल में उनके लिए है, उनके काम की वजह से। और उनका जो काम है वो इन इट सेल्फ बहुत फिनोमिनल है, लेकिन वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। और मुझे बरमला कहने में इस बात में कोई वो नहीं है कि मैं कितना सीखता हूँ हर बार जब मैं उनसे मिलता हूँ, और कितना इंस्पायर होता हूँ उनकी जो कंट्रीब्यूशन है। एक ह्यूमिलिटी का एहसास पैदा होता है किसी को भी जब उनसे मिलता है कि व्हाट ऑल कैन बी डन इन अ लाइफ टाइम इफ यू आर कमिटेड टू अ कॉज द वे ही इज कमिटेड टू इट। और जब उन्होंने मुझे अपने ये ताज़ा तरीन प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि ये एक येट अनदर ह्यूज कॉज है मेरे ख्याल में
जिसकी तरफ हम सब की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता कंपल्सरीली होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एज अ विजनरी दैट ही हैज थॉट ऑफ इट right at the time when it should have been thought of. So thank you very much for asking me to talk about it. मैं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में आपकी जो बातचीत है उसमें बहुत बातें करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ यहाँ से शुरू करूंगा कि ये आज सुबह का केस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक बच्चा देखा है डॉक्टर साहब, और मैं उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहता हूँ, और फिर जरा आपसे पूछना चाहूंगा, सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये टॉपिक कितना रेलेवेंट हो गया हुआ है। ये जो बच्चा है इसके जो माँ बाप हैं ये डॉक्टर्स हैं। ये आज मेरे पास लेकर आए सुबह 8 बजे इस बच्चे को, और उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि ये बच्चा ना तो स्कूल जाता है और ना ही ये किसी से मिलता है, ये घर में बंद हो गया है, क्योंकि इसका ये कहना है कि इसका हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है और ये आउटर स्पेस से आया हुआ है और अब इसको वापस जाना है आउटर स्पेस में, और उसके लिए इसने ये प्लान किया है कि इसको मर जाना चाहिए क्योंकि ये वहां मर गया था इसलिए यहाँ आया है, यहाँ मरेगा तो वापस जाएगा। तो हम तो बहुत ज्यादा पैनिक में हैं बिकॉज हर वक्त हम इस फियर में है दैट ही विल कमिट सुसाइड एंड दिस इज एन इमरजेंसी। सो यू कैन ऑल इमेजिन द काइंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड पेरेंट्स वुड बी इन व्हेन देयर सन नेम्ड हमजा वुड से समथिंग लाइक दिस। तो मैं बड़ा फैसिनेट भी हुआ और डिस्ट्रेस भी हुआ उस बच्चे को देख के। वो जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं बैठा था और हवा में घूर रहा था और इनअप्रोप्रिएटली स्माइल कर रहा था और हैरान हो रहा था इस बात से कि उसको डॉक्टर को दिखाया जा रहा है। तो मैंने पेरेंट्स को कहा कि आप अगर ज़रा बाहर स्टेप आउट करें और मैं ज़रा अकेले हमजा से बात करूं। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। और उन्होंने जब वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे। वो बच्चा एक इस्लामाबाद के बहुत बड़े मशहूर अस्पताल में दाखिल रहा था नवंबर में। एक रात वो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स हिस्ट्री वो अपनी गाड़ी में अपने 5 दोस्तों के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था कि अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एक बच्चे ने हैंड ब्रेक खींची बहुत जोर से, वो जो स्पिन करते हैं कार को। तो उसमें जब उन्होंने स्पिन में डाला उसको, कार उलट गई और उसके अंदर एक बच्चा तो वहीं पर ही फौत हो गया हादसे में, बाकी जो थे वो जख्मी हो गए, और जो हमजा थे ये कोमा में चले गए और इनको हेड इंजरी हो गई और इनको इस अस्पताल में दाखिल किया गया। यहाँ पर जब उनके सारे स्कैन्स वगैरह हुए तो उससे पता चला कि उनकी जो राइट पैराइटल लोब है, ये इस एरिया को, ये जो पैराइटल लोब है यहाँ होता है और यहाँ टेम्पोरल लोब होता है। इस जगह के ऊपर उनके बहुत शदीद चोट थी और उसकी वजह से वो कोमा में थे, क्योंकि उनकी जो अंदर स्कल थी उसके अंदर भी एडिमा हो गया था लेसरेशंस और ब्लीडिंग की वजह से। तो उनको ऑपरेट तो नहीं किया गया, कंजर्वेटिवली मैनेज किया गया, और उस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में उनका जैसे जैसे फिर एडिमा खत्म हुआ तो वो अगले 6 हफ्ते तक कोमा में रहे। मैं उसकी मेडिकल डिटेल्स में आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जब वो उसमें से इवेंचुअली जागे तो फिर उन्होंने ये बात कही कि आप लोग कौन हैं, और तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके माँ बाप हैं, ये हॉस्पिटल है। उसने तो बड़ा हैरानगी से देखा सबको और उन्होंने कहा कि ये तो मैं कहाँ हूँ, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ हैं, ये शहर है, फलां है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो आप लोगों से कोई लेना देना ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक और सियारे से आया हूँ आउटर स्पेस से, और मैं वापस जाना चाहता हूँ। अपने जो वाले साहब थे उनको उन्होंने अंकल कहना शुरू कर दिया, उसके बाद अम्मी को आंटी कहना शुरू कर दिया। जब वो उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए उनको वो पुरानी तस्वीरें दिखाते थे और वीडियोस दिखाते थे जो उनकी थी पहले से, तो वो बड़ी हैरानगी से उनको देख कहते थे कि अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी एक पिछली जिंदगी भी रही है। वो हो सकता है कि पिछली जिंदगी मेरी आपके साथ गुजरी हो, लेकिन जो मेरी मौजूदा जिंदगी है वो जिंदगी एक्चुअली एक और सियारे की, और उसकी उनके पास बहुत सारी तफसीलात भी थी। जिस वक्त वो पेरेंट्स चले गए तो उन्होंने मुझे उसकी तफसीलात सुनानी शुरू की। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में ये कहानी जो उन्होंने मुझे सुनाई और ये जो वो बातचीत उन्होंने सुनाई और अपने जो सियारे के किस्से हैं, ये आपके ख्याल में क्यों और किस लिए और किस तरह
इस एक्सपीरियंस में से वो गुजर रहे हैं। एनी आइडियाज? प्लीज अपना माइक खोलिएगा और खुल के आप कहिए जो भी आप कहना चाहते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी झिझक है तो आप बेशक जो आपका चैट बॉक्स है उसके अंदर भी आप अपने इनपुट्स डाल सकते हैं। जी जनाब, एनी थॉट्स? एनीबडी? माइक ऑफ कीजिएगा अपना, म्यूट अनम्यूट कीजिएगा और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी और सुपर नेचुरल कार्टून्स, टिकटॉक, मेमोरी सेंटर इन ब्रेन लाइक हिप्पोकैम्पस। ये तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुल हसन साहब। वेरी इंटरेस्टिंग। जी, एनीबडी अदर देन जो जी, माइक जरा अपना अनम्यूट करके और बताइएगा। एनीबडी? शर्मीले पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कहना नहीं चाह रहे। सर जी भाई इस्लाम जी। सर बेसिकली जो अभी आपने सिनेरियो बताया है उससे तो यही लग रहा है कि जो बच्चा है उसने पूरी लाइफ अपना जो मतलब जो उसका चाइल्डहुड था, जो उसका डेवलपमेंटल सारा टाइम था, उसमें उसने ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम किया है कि वो उसकी काइंड ऑफ उसकी मेमोरी के अंदर जो है ना, उसकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरी में वो चीज़ चली गई हुई है। ये जिस तरह हम कार्टून्स देखते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें आपका आउटर स्पेस में एंड एनी एवरीथिंग दैट इज नॉट रियल, तो वो जब उसके अंदर से अब वो उसको इंजरी हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो वो उसका जो सब कॉन्शियस है वो शायद उसी के अंदर रह रहा है, या मुझे तो ये चीज लग रही है। इट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन जो अभी आपने केस बताया है। स्केरी है, बिल्कुल स्केरी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमने उनको हंसते खेलते भेजा है यहाँ से, और मुझे यकीन है कि एज ए साइकाइट्रिस्ट ही इज गोइंग टू बी फाइन आफ्टर अ व्हाइल। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा उस बच्चे से, जिसमें सारी बात उनसे फिर क्लियर हो गई। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट वीडियो गेम कौन सी है, और उस फेवरेट वीडियो गेम का कंटेंट क्या है। क्योंकि जब उन्होंने नाम बताया तो मैंने कहा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है वीडियो। वैसे मुझे ऐसे कहा जैसे मुझे उसका नहीं पता, मुझे किसी भी वीडियो गेम का कुछ नहीं पता, लेकिन उसको मैंने ऐसे बताया जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो गेम का मुझे नहीं पता। तो उसने फिर मुझे पूरी तफसील सुनाई, और जब उसने सुनाई तो वो एग्जैक्टली ये कहानी थी जो वो सबको सुना रहा था। ही इज एक्चुअली लिविंग the character that he has been exposed to prior to the head injury for that favorite video game that he has played all his life. तो आप लोग सब सही नतीजे पे पहुंचे कि उसका जो एक्सपोजर था बहुत सालों से, वो एक उस वीडियो गेम के मल्टीपल जो है ना वो सीक्वल्स आ रहे थे, और अब वो जब उसकी राइट साइडेड जो बैलेंसिंग लोब होता है, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, हमारी मेमोरी का ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हमारी जो मेमोरीज हैं, एज यू ऑल नो, दे आर स्टोर्ड इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब। जो हमारा डोमिनेंट लोब होता है उसके अंदर होती हैं सारी मेमोरीज टेम्पोरल लोब में। जो हिप्पोकैम्पल एरिया होता है उसके अंदर, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन में। लेकिन उसका जो बैलेंसिंग एक्ट होता है, जो उसको कंटेक्सचुलाइज करता है या उसकी जो स्पेस डिसाइड करता है कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कहनी है, वो हमेशा राइट साइड पर होता है। यानी जो इमेजिनेशन और रियलिटी का एक रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा राइट टेम्पोरल और राइट पैराइटल लोब होता है। तो वो चूंकि उसका डैमेज हो गया, उसने एक्चुअली जो चीज स्टोर की हुई है वो ना अपने अब्बा हैं, ना अपनी अम्मी है, ना उसके वीडियोज हैं। उसने जो सारी चीज कंज्यूम करके रखी हुई है प्रिडोमिनेंटली उसकी मेमोरी में, वो है जो वो कई सालों से स्क्रीन के ऊपर देख रहा है और वीडियो गेम्स खेल रहा है। तो ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त ह्यूमन ब्रेन को मौका मिलता है कि वो प्रिफर करे कि उसको क्या चीज रिटेन करनी है मेमोरी में, अब इसके पास तो चॉइस नहीं रहा ना,
इसके पास तो राइट लोब नहीं रहा, पैराइटल टेम्पोरल लोब नहीं रहा, तो उसके पास चॉइस खत्म हो गया। तो चॉइस में तो वो हो सकता है कि अपने माँ बाप को याद रख ले या इस दुनिया को याद रख ले जिसमें वो रह रहा है, लेकिन जिस वक्त ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं होगा तो फिर जो प्रिफर्ड मोड है उसका, उसमें उसने उसकी जो सारी एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर प्रेफरेंशियल जो स्टेट है वो है जो उसने स्क्रीन पे देखा हुआ है, यानी हिज वर्चुअल वर्ल्ड डोमिनेट्स ओवर द रियल वर्ल्ड। दिस इज द स्केरी पार्ट and this is the part that needs to be looked at seriously in the context in which you would be requested to make this project and understand what you are in it. अब जब आप स्टार प्रोजेक्ट रन कर रहे होंगे ना और इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन्स देख रहे होंगे और इसको, तो अब आपके पास एक तरीका तो ये होगा कि जो मैंने आपको बात सुना दी है कि आप माशरे में लोगों को और पॉलिसी मेकर्स को ना डराना शुरू कर दें। ये पाकिस्तान में एक बेहतरीन तरीका है, ये मुल्ला तरीका है। ये बचपन से मुझे जिस जुमा पढ़ने में जहाँ जाया करता था, बचपन से बेहतरीन तरीका ये था सही काम करने का कि मुझे स्केयर करते थे मौलवी साहब बिठा के सामने जुमे की अज़ान देने के बाद कि क़यामत के दिन तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम नेक काम नहीं करोगे। तो अगले आने वाले जहान के बारे में डरा के ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये है स्टार प्रोजेक्ट का कि आप मुल्ला की तरह स्ट्रेटजी बनाएं और उसके अंदर लोगों को, माशरे को डराएं कि ये अगर स्क्रीन्स आ गई ना तो आपका बेड़ा गर्क हो जाना है। और ये पूरी लिस्ट है और मैंने इसके नीचे रेफरेंसेस भी आपके लिए लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लें जरा। दिस इज व्हाट कैन हैपन with a screen exposure that is unbridled, unmonitored, and with all the liberty in the world. This is what screens can do to you at a neuropsychological level. जो ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हैं, आप इसे पढ़ लें और इसके रेफरेंसेस भी नीचे लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी मैंने कोई नई बात तो लिखी है। आप अभी जो टाइप करें इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन्स ऑन द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, और ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो कोई कमाल की बात नहीं होगी कि किसी प्रोजेक्ट में आप लोगों को डरा धमका के समझा दें कि जनाब आप स्क्रीन्स ना यूज करें क्योंकि इससे बड़े नुकसान होने वाले हैं। मैंने ये सोचा कि आपसे कुछ गहरी बात की जाए, थोड़ी सी जरा ऐसी बात की जाए जिससे आपको ये समझ आए कि जब आप कोई प्रोजेक्ट करें उस प्रोजेक्ट का मकसद ये होना चाहिए। मैं कंपटीशन में हूँ इस वक्त किसी के साथ, बच्चे के साथ, वो भी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जो मैं आगे गुजारिशात आपसे करने वाला हूँ ये इसलिए हैं कि मैं अस्यूम करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट जिससे डॉक्टर नईम जफर लीड कर रहे होंगे वो डेप्थ में जाएगा और डिटेल में जाएगा और अंडरस्टैंड करेगा व्हाट आर स्क्रीन्स ऑल अबाउट। और उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो याद रखें कि ह्यूमन बीइंग्स एक वक्त में 75,000 साल तक की मेमोरी अपने अंदर लेके घूम रहे होते हैं। 75,000 years of collective unconscious is stored within us। तो वो प्रोजेक्ट जो कि कामयाब होगा वो हमेशा वो प्रोजेक्ट होगा जो मल्टीपल लेयर्स, जिनका ये मैंने आपसे जिक्र यहां सामने आपके सामने रखा हुआ है, ये मल्टीपल लेयर्स हैं ऑफ नॉलेज जो एक ह्यूमन बीइंग में एक वक्त में दुनिया में मौजूद होती हैं। ये सीक्वेंशली नहीं है लेकिन साइमल्टेनियसली हर इंडिविजुअल में मौजूद होती हैं। ये आप देख लीजिए। और चीजों को सॉल्व करने के लिए या उनको रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ वही प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं कि कोई भी मामले को समझने के लिए सिर्फ एक साइंटिफिक मॉडल या एक कल्चरल मॉडल या एक बिहेवियरल मॉडल या एक बायोमेडिकल मॉडल या एआई मॉडल या स्पिरिचुअल मॉडल काफी नहीं होता। इंसान एक ऐसा जिक्सॉ पजल है
जिसमें एक ही वक्त में उसको कंप्लीट करते हैं ये सारे पर्सपेक्टिव्स जो मैंने आपके सामने रखे। तो जब आप कंसीव कर रहे होंगे कि हमने कैसे डील करना है स्क्रीन्स को, तो याद रखिएगा कि ये एक गहरी कहानी है। बेसिकली वो गहरी कहानी तभी शुरू होगी कि जब आपको ये समझ आ जाएगी कि एक इंसान का बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल पहलू होता है, वो एक कायनात का हिस्सा है। अब ये जो बच्चा था, इसकी जो वीडियो बनी हुई थी वो तो कायनात के बारे में थी। उसकी जो कायनात थी वो एक वीडियो गेम में वो कायनात थी जिसमें उसके वो कैरेक्टर्स थे जो उसके वीडियो गेम्स के थे। तो जिस इन्वायरमेंट में एक इंसान जिंदा होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है उसके चॉइसेस ऑफ लाइफ के ऊपर। और ये भी जहन में रखिएगा कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट को जो बाहर है इसे नहीं कहते, सिर्फ वो इन्वायरमेंट जो आपके अंदर है उसको भी इकोलॉजी कहते हैं। और आपने एक वर्ड सुना होगा होम्योस्टेसिस, तो जरा टाइप करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में होम्योस्टेसिस क्या होती है। और अगर आप बताना भी चाहें, वैसे भी बताना चाहें, तो वो भी बताइएगा कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। और चैट बॉक्स में भी जरा कमेंट कीजिएगा इसके बारे में, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। गुड। इंटरनल state of harmony between the internal and external environment. Excellent. बिल्कुल सही. This is what it is. So that means that कितनी गलती पर हैं हम लोग जिस वक्त हम ये कह रहे होते हैं कि इकोलॉजी का मतलब वो इन्वायरमेंट है जो बाहर है। नहीं, वो इन्वायरमेंट जो आपके अंदर है वो भी इकोलॉजी का हिस्सा है। और एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स हैव परफेक्टेड दिस आर्ट लाइक मेनी एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स टू क्रिएट अ हार्मनी बिटवीन the internal and the external environment. So जब आप environment में एक चीज देखें कि नई डेवलप हो रही है, स्क्रीन्स डेवलप हो रही हैं, तो याद रखिएगा कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। वो एक इम्बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है किसी इंडिविजुअल में इंटरनली और एक्सटर्नली, और उसको बैलेंस करने के लिए वो एक एक्ट कर रहा है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। So basically, you have to understand in the STAR project that what you see young adolescents and children doing on the screens is a reflection of what is going on in their heads and in their minds and in their brains. उसकी प्रोजेक्शन स्क्रीन्स के ऊपर है। हम जब बादियों नजर में देखते हैं, ये सामने देखते हैं, जैसे मैंने कहा था मुल्ला के इफेक्ट से, तो हम ये देखते हैं कि स्क्रीन हमारे दिमाग को कुछ कर रही है। तो अगर आप होम्योस्टेसिस को समझते हैं तो याद रखिए कि हमारा ब्रेन इन्वेंट कर रहा है व्हाट वी वांट टू सी ऑन द स्क्रीन। सो देयरफॉर इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू नाउ अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा वायलेंट स्क्रीन्स के ऊपर कोई वीडियोस देखना चाहता है तो दैट मीन्स उसके ब्रेन के अंदर देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड ट्रॉमा रिकॉर्डेड, जो उसको बैलेंस करने के लिए वो बाहर देखना चाह रहा है, एंड दैट इज होम्योस्टेसिस। सो अगर अब आप चेंज करना चाहते हैं कि स्क्रीन पे क्या आ रहा है नजर, तो क्या चीज चेंज करनी है? स्क्रीन चेंज करनी है। आपको माइंड और ब्रेन चेंज करना पड़ेगा, जो उसका कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखें कि ये एक थ्योरी है जो मैं चाहूंगा कि आपकी जब आपके पास टाइम हो ना तो आप इसको पढ़िए। इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ माइमेसिस। इंसान कॉपी करता है हर वो शय जो उसके बाहर होती है। उसकी क्लासिकल एग्जांपल मदर टंग है। कल मैं और डॉक्टर नईम जफर साहब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे।
मैं ये बात कर रहा था वहां पर भी कि हमारे बच्चे हमारा मिरर इमेज हैं, जो अपने इर्द गिर्द वो देखते हैं वही वो बन जाते हैं। सो उनके पास तो एक हार्ड डिस्क थी जिसको वो लेकर आए थे, उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो तो हमने अपलोड किया है उनके ऊपर। तो इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको फुल्ली अवेयरनेस हो जाए कि स्क्रीन्स का मतलब क्या होता है। Develop a deeper meaning of the word screen. So the screen on which you can see me and I am seeing you is not the only screen. The computer is here. This is the computer of which the screen is a projection. तो मेरी कितनी बेवकूफ़ी होगी कि अगर मेरे कोई स्पेलिंग गलत हो स्क्रीन के या डीपर मीनिंग के या सर्वाइवल के, और वो गलत हो वहां पर मीनिंग, तो मैं एक रबर लेके स्क्रीन को साफ करना शुरू कर दूं। कितना बड़ा बेवकूफ होऊंगा। और अगर आप मुझे ऐसा करता देखेंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है? यार तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन में है तो नहीं, है तो ये कंप्यूटर में। आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर को चेंज करें। अगर आप कंप्यूटर को चेंज कर लेंगे स्क्रीन चेंज हो जाएगी। तो इश्यू स्क्रीन्स के साथ नहीं है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका ताल्लुक इज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कंप्यूटर। और आपका क्या, मुल्ला का जो स्टाइल है अनफॉर्चुनेटली, और जो आपको लेजिस्लेटर्स बताएंगे जिनके साथ आप ये प्रोजेक्ट्स लेके जाएंगे, ये बैन कर दो, वो खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, इसके ऊपर मुकदमा कर दो, उसको अंदर दे दो। ये जो वो जो टिपिकल, जैसे मैंने आपसे कहा, मुल्ला सोल्यूशन टू एवरीथिंग, कंप्लीटली फॉरगेटिंग कि आज का जो बच्चा है या एडोलेसेंस है उसके उसके पास चॉइस ही नहीं रहा। उसके पास सर्वाइवल के लिए इस वक्त एक चीज रह गई है और वो उसकी स्क्रीन है। और वो अपने दोस्तों से, अपने साथियों से सिर्फ एक तरीके से कम्युनिकेट करना अब शुरू हो गया है, एंड दैट इज थ्रू स्क्रीन्स। और अगर उसके पास स्क्रीन नहीं होगी और आप उसको बैन करके और उसको अलहदा कर देंगे और उसके घर में मना कर देंगे कि स्क्रीन नहीं होगी, ही विल बी एक्सक्लूडेड। वो एक सोशल एनिमल है। जब वो एक्सक्लूड हो जाएगा और उसके पास एक तरीका था, तो फिर ऐसे ही है जैसे आपने मेरे नाक पर हाथ रख दी, तो आप मुझे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन तो जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरी सफोकेशन का क्या हाल होगा। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो 30 सेकंड तक अपने मुंह पे इस तरह से हाथ रख के देखिए। जोर से हाथ रख लें ऊपर, जोर से, और फिर देखिए आप कैसे फील को। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि करके देखें इसको। अच्छा जी, मेरा तो इतना ही स्टेमिना था, मैं तो 20 सेकंड के बाद फारिग हो गया। आपका मुझे नहीं पता, पर ये मैंने सिर्फ आपको एम्पैथाइज करवाया है ऑफ व्हाट वुड इट फील टू एन एडोलेसेंट टुडे ऑफ टुडे व्हेन यू वुड एक्सक्लूड स्क्रीन्स। दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू फील सफोकेटेड। इसलिए इस वक्त जिस वक्त आप किसी बच्चे को ये कहते हैं कि तुम्हारा बैन है आज के बाद सोशल मीडिया, तुम्हारा बैन है आज के बाद मोबाइल, तुम्हें स्मार्टफोन तुमसे मैं छीन लूंगा, तो आप यकीन रखिएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ये होगा कि वो ये सारे काम चोरी करेगा, वो और तरीके से वही चीज हासिल करेगा। कोई शख्स भी इस तरह से, और अगर आप फिर भी बाज नहीं आएंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि मुझे अपनी जान तो बचानी है, तो जिसने मेरे इधर हाथ रखा होगा तो मैं उसके हाथ को झटक दूंगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज अ डीपर इशू। You cannot take it away from your adolescents and your adolescents. Let me just now very briefly in the next 5 minutes or so give you a glimpse of what is going on in the minds of Pakistani adolescents in general, but I believe in adolescents in most parts of the world. They are lonelier than ever. ये joint families के बच्चे नहीं हैं। हम लोग जिन घरों में रहते थे वहां बहुत सारे और लोग भी होते थे, वहां तो मोहल्लेदार भी घर का ही हिस्सा होते थे। आज का बच्चा 18वें फ्लोर के ऊपर एक 1 बेडरूम फ्लैट के अंदर रहता है अपने माँ बाप के साथ,
और कब कोई ऐसा टाइम होता है कि माँ नहीं होती, कोई ऐसा टाइम होता है जब बाप नहीं होता, और कोई ऐसा टाइम भी होता है जब दोनों ही नहीं होते। वो किसी पार्क में नहीं जा सकता क्योंकि पार्क में अगवा ना हो जाए, वो किसी गली में नहीं खेल सकता क्योंकि वहां से उसे कोई उठा के ना ले जाए। तो एक फियर की फिजा में बगैर प्लेग्राउंड्स के उसके पास वाहिद आउटलेट उसका स्कूल है, और उसके बाद उसका स्मार्टफोन है, और वो एक क्राइसिस में है। वो सारा दिन यही जानने की कोशिश कर रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, जिसको हम साइकोलॉजी में और साइकाइट्री में कहते हैं एडोलेसेंट क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि वो जो स्क्रीन पे देख रहा है वो कुछ और है, और जो उसकी जिंदगी में हो रहा है वो कुछ और है। इन दोनों के दरमियान बहुत गैप है, और बीच में एक स्कूल है जिसमें वो कभी वो बनने की कोशिश करता है जो स्क्रीन पे देखता है, और कभी वो बनने की कोशिश करता है जो वो घर में है। तो एक टोटल केओस और कंफ्यूजन का शिकार है आज का बच्चा और एडोलेसेंट। मुसीबत उसकी दूसरी ये है कि बचपन से ही उसके इर्द गिर्द बेशुमार खिलौने, उसके इर्द गिर्द बेशुमार चीजें, बेशुमार ऑब्जेक्ट्स रहे हैं। उसको तरह तरह के रंग और कलर्स और चीजें मिलती रही हैं सारी उम्र। तो अब उसका जो थ्रेशोल्ड है ना एक्साइटमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया हुआ है, और नतीजतन वो ऐसे बोर हो जाता है। ऐसे वो एक स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा कोई चीज आ रही हो तो वो उसको देख नहीं सकता। और एकदम आप खुद भी देखते होंगे, हम निस्बतन थोड़ी सी पुरानी जनरेशन है तो हम शायद 5-7 मिनट के लिए कोई चीज देख लेते हैं। ऐसे 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 देखना, तो दैट इज वाई द टिकटॉक इज सो पॉपुलर। 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स ऐसे ऐसे आप चेंज कर, तो ये स्पैन रह गया हुआ है हमारा इजीली बोर होने का, एंड वी वांट टू सी द नेक्स्ट थिंग। सो दिस इज द लाइफ ऑफ एन एडोलेसेंट, ह्यूजली रिएक्टिव। कुछ चीजों के बारे में वो, खास तौर पर रिश्तों के बारे में वो टोटली हाइपोसेंसिटिव हो गया। उसको आप बताएं कि आपके दादा आए हैं घर में, कहते अच्छा फिर। उसको क्या आपके चाचा आए हैं, कहते अच्छा फिर आपका भाई है, मैं क्या करूं उसके बारे में। मामू अभी तक सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि अम्मी जो है वो जरा पावरफुल होती हैं घर में। मामू के लिए वो जरा कहते हुए घबराता है क्योंकि वो चंदा मामू है, लेकिन चाचे चाचे और दादा अबू वगैरह तो फारिग हो चुके हुए हैं। तो वो रिश्तों के बारे में हाइपोसेंसिटिव हो गया है। नथिंग रियली एक्साइट्स हिम अबाउट रिलेशनशिप्स। पर्सनल लेवल के ऊपर हाइपर सेंसिटिव है। आप उसको इतनी सी बात नहीं कह सकते, आप उसको घूर के नहीं देख सकते, आप उसको चीख नहीं सकते, आप उसके साथ ऊंची बात नहीं कर सकते, बिकॉज उसको घबराहट शुरू हो जाती है। वो कहता है यू आर जजिंग मी। मतलब वो जरा सी आप उससे तल्ख बात करके देखें, वो तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे एकदम उसके अंदर कोई रिजिलियंस नहीं रहेगी टुवर्ड्स पेन टॉलरेंस, एकदम हर्ट होता है वो। बहुत सारे स्कूल हैं इस वक्त, वो बच्चों को स्कूल आने पर प्राइजेस दे रहे हैं, और अगर फेल हो गए तो उनको कहते हैं कोई मसला ही नहीं, आप अगली क्लास में चले जाएं। क्योंकि वो अपसेट हो जाते हैं जब उनको ये कहा जाए कि आप फेल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि ये जो स्क्रीन है इसको समझते हुए जरा सा इनर वर्ल्ड और जो उसकी जो स्टेट ऑफ वेलबींग है इस वक्त एक एडोलेसेंट की और बच्चे की, उसको मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स आपको देना चाह रहा हूं सिर्फ इन तमाम चीजों से। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज का बच्चा इंतहाई अनट्रस्टवर्दी है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। वो ये कहता है कि वो हर चीज को शक से देखता है, क्योंकि हमें बचपन से हमने बच्चों को अब ये सिखाना शुरू कर दिया है कि तुमने वो फलां के पास नहीं बैठना, जाके उसकी गोद में नहीं बैठना, उसके साथ खड़े नहीं होना, उससे बात नहीं करनी। ये मैं अब ये नहीं कह रहा कि ये राइट है या गलत है या ये वो। डॉक्टर साहब का एक और जो इंटरेस्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, उसमें हम बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं जो उनकी सेफ्टी के लिए बड़े जरूरी भी हैं, लेकिन उससे ओवरऑल एक बच्चे के अंदर एक पैरानॉइड स्टेट डेवलप हो चुकी हुई है। वो हर चीज को शक की नजर से देगा, और उसकी अपनी सीक्रेट्स हैं जो वो अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करने के लिए तैयार नहीं, और उसकी जो सीक्रेट्स हैं वो इसके अंदर हैं, सारी की सारी क्लाउड पे है, और उसने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स बनाए हुए हैं। तो मुझे एक दिन मेरी बेटी देख रही थी पासवर्ड लगाते हुए, मेरे पासवर्ड है,
तो उसे कहा, ये आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ये पासवर्ड है आपका? ये तो मेरे ख्याल में ये जो घर में मुलाजिम है उसका भी पता होगा कि ये पासवर्ड है। वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड लगाएं। फिर उसमें 2-4 एग्जाम्पल दिए, मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा ये पासवर्ड को, ये रखना कहाँ है इस पासवर्ड को? सो इतनी इनसिक्योरिटी है जिसकी हद है ना हिसाब। और ये जो मामला है, ये जो जिंदगियों में जहर इसने घोले हुए हैं, उसकी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। सो ओवरऑल मैं अगर आपको ये दुनिया का ग्लिम्स दिखाऊं जिसमें एक बच्चा प्रिफर करता है वर्चुअल को, क्योंकि रियलिटी में उसकी जिंदगी में उसको लगता है कि उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है, बल्कि उन लोगों के पास है जो पेरेंट्स हैं। इनको वो कहता है दे, पेरेंट्स आर दे, आई एंड दे। सो देर इज दिस देमनेस अबाउट एवरीबडी अदर देन हिम और हर। And who are they? They are source of pain and anguish. They are judgmental. They invalidate me and they compare me. अब ये सारी चीजें थी जो कि पहले वाली जनरेशन्स में रेगुलरली की जाती थी एंड दे वर नॉर्म्स। क्योंकि वो ना कंट्रोल हैंडल कर सकता है, ना वो जजमेंट्स ले सकता है, ना वो पेन हैंडल कर सकता है, ना वो इनवैलिडेशन ले सकता है, ना वो कंपैरिजंस को पसंद करता है। तो ये तो है रियलिटी। तब इसमें क्या हैरानगी की बात है कि वो अपने लिए एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त करे जिसके अंदर कंट्रोल उसका अपना हो। यानी कि आप जब चाहें जिधर मर्जी उंगली घुमाएं, टक क्लिक करें और वो सब कुछ हो जाए, एवरीथिंग इज ऑन योर क्लिक। तो उसे कंट्रोल चाहिए, मिल गया ना, जो जजमेंटल बिल्कुल ना हो। और उसके एक को चैम्बर्स हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती करेगा जो उसके जैसे हैं। और अगर उनमें से कोई भी ऐसा हुआ जो उसे पसंद नहीं है, तो एकदम एक क्लिक के ऊपर से डिलीट कर देगा हमेशा के लिए। जो उसे जजमेंट, जो उसे पेन दे रहा है, उसको वो डिलीट कर देगा। सो ऑल रिलेशनशिप्स आर डिलीटेबल रिलेशनशिप्स। Anything that causes any of this stuff in his life in the virtual world, it is going to be destroyed completely by him. So now you see, why is he so excited in the video game? Because उसके अंदर वो जो कंट्रोल्स हैं, लिटरली उनको तो कहते ही कंट्रोल्स हैं, उन कंट्रोल्स के साथ वो अपने एनिमीज को, जो उसको पेन दे रहे हैं, जो उसके बारे में जजमेंटल हैं, जो उसे इनवैलिडेट कर रहे हैं, जो उसको कंपेयर कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट इज द रीजन वीडियो गेम्स आर सो पॉपुलर एंड एवरीबडी इज सो एक्साइटेड अबाउट देम। ये मैं उनका थोड़ा सा आपको मेंटल हेल्थ की एक पिक्चर देना चाहता हूँ कि one of the reasons why virtual is relatively soothing for the new generations, or alpha generation in particular, but also for the Z generation, is these aspects that I've listed in front of you. There are several surveys to show that every third adolescent and young adult in Pakistan is testing positive for scores of depression and anxiety of a clinical distressing level. Every third. I can't think of any other disease that affects 30-35% of a population. और ये कहानी पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के अलावा भी जो मुल्क हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन पर्टिकुलर, उनकी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जनाब फिर इसका क्या करना है जनाब, स्क्रीन टाइम का और जिसके चैलेंजेस हैं। तो ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं, वो मेरी बड़ी फेवरेट स्लाइड है। तो ये इस बारे में है कि क्या नहीं करना, क्योंकि कॉमनेस्ट तरीका हमारे यहां ये है। ये हमारे यहाँ कॉमनेस्ट तरीका है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आई हुई, ना ये ईस्ट पंजाब से आई हुई है। ये दाता साहब के बाहर की तस्वीर है। एक बड़ा चैंपियन आया दाता साहब सलाम करन, उन्हें अपनी क्या कि मैं जुत्ती नहीं जमा करानी, वो बाहर रख के उसको ताला लगा के चला, जुत्ती का हाल देख लिया। सो ये हमारे यहाँ जो एक ऑब्वियस तरीका सबको समझ आता है ना, ताले लगा बंद कर दो। दिस इज हाउ। So you have to be innovative in your star project. You cannot ban things and just
थिंक कि बस इनके ख़त्म कर देने से और इनके ऊपर बैन लगाने से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब आप लेजिस्लेशन कर रहे होंगे, जब आप रेगुलेट कर रहे होंगे या रेगुलेशंस कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन ये काम करने से और उसके अलावा ये काम करने से जो मैंने आपके सामने अभी लिखे हैं, जो कॉमनेस्ट तरीके हैं आजकल जिनसे माँ बाप हैंडल करने की कोशिश करते हैं और बाद स्कूल भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे, ये नहीं चलेंगे। अगर आपकी रेगुलेशंस इन चीजों के ऊपर बेस्ड होंगी तो इट विल ओनली डू व्हाट वी डू जनरली। किसी चीज के लिए भी हम चक्करबाजी, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि सड़कों के ऊपर बार बार जो है ना चलान होते हैं, तो आप ये करते हैं कि जैसे ही चलान हुआ तो आपको पता लगा कि अब जो अगला कैमरा है वो 20 किलोमीटर के बाद आएगा, तो जैसे ही आप चलान करा के आगे निकलते हैं तो आप 20 किलोमीटर तो कहते हैं इत्थे ते दबो ना यार, ये जो 5 मिनट ज़ाया हुए हैं ये तो मैं पूरे करूं, तो एकदम आप 160 पे चलाते हैं और फिर आपको अंदाजा होता है कि अब अगला कैमरा आने वाला है, तो फिर आप स्लो डाउन हो जाते हैं। सो ये बेसिकली क्रिएट अ स्प्लिट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। थ्रेट्स का, क्रिटिसिज्म का, सरमनाइजिंग का, स्पाइंग का, ट्रैपिंग का, कन्फ्रंटिंग का, जजिंग का कॉन्सिक्वेंस माशरे में स्प्लिट पैदा करता है। एक इंसान बाहर एक होता है, अंदर दूसरा होता है, इसी को मुनाफिक कहते हैं। निफाक हो जिसके अंदर, बाहर कुछ और हो अंदर कुछ और। जिस जनरेशन ने आज मुजाहरा किया है ना अमेरिका के सामने खड़े होने का, उसके अंदर कमाल सिर्फ यही है कि मुनाफिक नहीं है हमारी तरह। तो जो है वो सामने ये है जी, हम ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त, एक क्लैरिटी है। सो ये ज़हन में रखें कि ये मेथड्स अगर आप रिकमेंडेशंस में डालेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर रेगुलेट करते हुए इन मेथड्स को यूज करेंगे तो ये नहीं चलेगा। इट विल ओनली क्रिएट निफाक और मुनाफिकत। तो फिर चलेगा क्या? तो जनाब ये सजेशंस हैं, मैं इसके बारे में, क्योंकि ये एक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो मैंने पैरेलल आपको इसमें शो किया है, ये ऑल्टरनेटिव है और ये एक वर्कशॉप है। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद एडोलेसेंट्स विदाउट गिविंग जजमेंट्स, हाउ टू गिव अ व्यू टू, हाउ टू बी फ्रेंड एन एडोलेसेंट। ये वर्कशॉप्स हैं, मैं ये वर्कशॉप्स रन करता हूं। तो ये मौका नहीं है जहां पर मैं आपको कि कैसे आप चेंज कैसे करते हैं, इनवैलिडेशन टू वैलिडेशन पर कैसे आते हैं इन एडोलेसेंट्स। तो मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको एडोलेसेंट्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, तब जाके उनके लिए रियल प्रेफरेबल होगा ओवर वर्चुअल। तो ये प्रोजेक्ट जो बनाएंगे आप स्टार का, जो कि रेगुलेशंस लाएगा, वो एक्चुअली स्किल्स इंपार्टिंग करेगा पेरेंट्स को और एडोलेसेंट्स को ऑफ डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू befriend each other, how to communicate with each other, how to actually discover each other's uniqueness, how to become partners in solving problems and difficulties. Those are the techniques. It's called Organized Conflict Management और OCM. So ये एक पूरी टेक्निक है, जैसे मैंने कहा कि इनकी वर्कशॉप्स हैं, ये पूरी पूरी फिलॉसफीज हैं, तो तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। I'll just take a couple of more minutes because we want to have some questions and answers as well. इसकी जो पहली टेक्निक है वो ये है कि आप उस जनरेशन के साथ जिसको आप डील करना चाहते हैं, सबसे पहले वर्टिकल रिलेशनशिप से हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में आना चाहिए पड़ेगा आपको। आप आइंदा के बच्चों को अपने पार्टनर्स के तौर पर देखना शुरू करें। पहले ये वर्टिकलिटी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होती थी, बड़ों और छोटों के दरमियान होती थी, अब खत्म हो गई है। अब सारी दुनिया में हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल देखे जाते हैं। पहले वो मजाजी खुदा होता था, अब उसको समझ आ गई है और खातून को भी समझ आ गई कि मजाजी का मतलब होता है झूठा, ये झूठा खुदा है। अब वो सारे समझ गए हैं और नाउ वी आर हैप्पी टू बी इक्वल पार्टनर्स इन आवर लाइफ एंड दैट्स एन एंजॉयबल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अब बड़े छोटे खत्म हो गए हैं। अब
एक्सीडिंगली आप देखेंगे कि आपकी जो अल्फा जनरेशन के लोग हैं वो अपने अब्बा को अंग्रेजों की तरह नाम से पुकारा करेंगे। तो एक बराबरी की सतह डेवलप होनी शुरू हो रही है आपके कल्चर में। आप इसको पसंद नहीं करते, ना करें, लेकिन ये आएगी। इस इक्वालिटी में फिर आसानी होगी कि आप स्क्रीन्स के बारे में जो लिमिट्स लगाएं वो म्यूचुअली नेगोशिएटेड, प्री डिटर्मिन्ड हो, म्यूचुअली नेगोशिएटेड। वो जो आप वर्टिकली लगाएंगे उससे मुनाफकत पैदा होगी। जब आप म्यूचुअली नेगोशिएट करके मसले के तौर पर इसको, कि इसके क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहे हैं स्क्रीन के, तो जिस वक्त आपका और आपका एडोलेसेंट बेटा या आपका बच्चा और आप जिस वक्त मिल के कोई लॉज रेगुलेशंस बनाएंगे, रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे स्क्रीन्स को, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको सिर्फ एक्शन में कन्वर्ट करना आसान नहीं होगा, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने में भी किसी को कोई इश्यू नहीं आएगा। तो जब मैं अपनी सजा खुद मुतय्यन करता हूं ना, तो फिर मुझे किसी से शिकवा नहीं होता। ये जो ट्रेजेडी सख्त हो रही है, इसको रिवर्स करने के लिए आपको रिलेशनशिप चेंज करनी है, निगोशिएटेड लिमिट्स लगानी है, और फिर मैं समझता हूं कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे कि जहां पर वी कैन हैव अ मोर कंजीनियल एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड फाइट दिस वॉर against screens as a joint war rather than their war that we have to win for them. And that is the essence of what I was trying to say. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। आपने तो मतलब मैं जिस वक्त डॉक्टर मोहम्मद से बात कर रहा था ना, मैंने स्क्रीन टाइम पे आपने बात देनी है, तो मैंने कहा मैं आपकी जब भी कोई गुफ्तगू सुनता हूँ तो आप एक नया जाविया देते हैं, आप लोग कहीं से गहरी बात लेके आते हैं, बट आई नेवर न्यू कि उन्होंने तुम्हें उल्टा देना है। यहाँ पे तो सारी की सारी बात उलट गई है, विच इज एक्चुअली द एसेंस। एंड आई विश कि हम जो पुरानी जनरेशन वाले लोग हैं ये बात समझ सकें। हमें जो अभी तक जो एक बात करते थे ना, जनरेशन गैप, पहले वो जनरेशन गैप 30 साल में आया करता था, आज तो 10 साल में आ रहा है, सो शायद 5 साल में आ रहा है। अब जनरेशन बीटा तो और भी फौरन आ गई है, वी हैव टू सी दैट। तो आई एम सो ग्रेटफुल प्रोफेसर मोहम्मद साहब, एंड आपने एक हमें बिल्कुल जो मुझे ये लगा कि ये माशाल्लाह हमारे इस वक्त भी 72 पार्टिसिपेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि ये जैसे आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे मुखातिब करके कहा है। तो काम करने जा रहे हो इस तरह होना है, और इंशाल्लाह आपके साथ मिलके हम इसको इसी तरह चलाएंगे। I'm so grateful to you. So now, Laiba, सवाल जवाब दीजिए। Thank you so much, Dr. Mubaddal. It was very insightful session. Also, we have received several questions from our participants, so I would like you and Dr. Naeem to respond to those questions. अच्छा, एक सवाल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, that is about ChatGPT. There is a question that as child is known for 18 years, for me the use of YouTube, ChatGPT is a major concern. How can we learn the use of these apps? इसी तरह का एक और भी सवाल है कि ChatGPT is ruining children, तो इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे जो AI का यूज है? And Dr. Saab can take a start, और फिर मैं I'll give you my view. I think अगर हम इसको देखें ना, अगेन 2 बातें हैं। एक तो जब हमारे पास पहले मरीज आते थे ना, गूगल करके आते थे और सारी उल्टी बातें करते थे, तो ChatGPT ने कम से कम एक बात कर दी है कि वो फिल्टर होके आते हैं और कम से कम अब उनको कोई सही इंफॉर्मेशन जाती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ChatGPT और क्लाउड और जो दूसरे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपके मदद के लिए है, असल में सिर्फ ये है कि हमने उसकी मदद कैसे करनी है। और दूसरा जाहिर है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम का, तो बात वही है कि हम जो उससे मांगना चाहते हैं उसने हमें वही देना है, उसने हमें उसके अलावा कुछ नहीं देना। चलो, अच्छा, मैं ये समझता हूँ जी कि मैं बच्चों को, आइंदा जो नस्ल आने वाली है ना, उसको आप किसी भी नॉलेज के लिए अब स्कूल या किताब या किसी और चीज पर कन्विंस नहीं कर सकेंगे।
आई थिंक जो, क्योंकि हर चीज की जो बेहतरीन फॉर्म है वो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, वो जो नॉलेज बेस है वो आपको क्रिटिकल एनालिसिस के साथ एआई स्टेशंस के ऊपर मिल रहा है, सॉल्यूशंस आपको एआई सॉल्यूशंस पे मिल रहे हैं। जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जहां पर मेटा के साथ आपका इंटरेक्शन होना है, वो है कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलके अगली जनरेशन के साथ उनको सवाल बनाना सिखाएं, हाउ टू मेक अ बेस्ट क्वेश्चन. Meta is going to be only that smart as the question is. So जो हम पहले सिखाया करते थे स्टूडेंट्स को स्कूलों में और एक दूसरे के साथ, वो जवाबात थे. आइंदा नस्ल को जो सीखने की जरूरत होगी और उसमें अपना रोल प्ले करेंगे, दैट इज टू डेवलप क्वेश्चंस. It will be the quality of questions that will determine the progress of AI and the progress of human growth in the times to come. इल्म वाला मामला अब वापस जीरो पर चला गया है, और वो जो बात है ना बहुत पुरानी बुल्ले की, कि इल्मों बस करी हो यार, इक्को ही अलफ तेरे दरकार, हम वहां पहुंच गए. अलफ जो है ना वो एक सवाल है, तो सवाल करना आना चाहिए आपको. जितने अच्छे आप सवाल करेंगे, जवाब मौजूद है आप, अल्हम्दुलिल्लाह. अगली चीज जो आपको सीखनी होगी, दैट इज स्किल्स ऑफ हाउ टू डू इट इन अ वे दैट अ रोबोट कैन नॉट डू. ये अगली चीज होगी जो आप सीखेंगे. सब कुछ रोबोट कर सकता है, वो हिस्सा जो रोबोट नहीं कर सकता वो क्या है. तो दो काम रह गए हमारे पास अब एआई के होते हुए, सवाल बनाना, वो काम करना उस अंदाज से जो नहीं कर सकता एक रोबोट. हुमा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज समझ नहीं आई मुझे. Okay. Thank you so much, Dr. Muwaddat. We have another question जो बहुत interesting है कि how can hyperactivity caused by screen can be managed these days? There is a big challenge for parents to handle their children without screen. Hyperactivity. जी, हाइपर एक्टिविटी का मैं आपसे अर्ज करूं कि हाइपर एक्टिविटी जो है ना, ये बेसिकली अंडर स्टिमुलेटेड ब्रेन होता है. जब अंडर स्टिमुलेटेड ब्रेन होता है तो कंपनसेटरी हाइपर एक्टिविटी होती है. यानी यूं समझें कि मेरी जो कॉर्टेक्स है ना, जो इनहिबिटरी कॉर्टेक्स है, वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टेड है ऑन द स्क्रीन कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो एक तरह से सिडेड हो जाती है. तो उसको जगाने के लिए और उसको एक्टिवेट रखने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो इस पर डिटर्मिन्ड है कि कौन से सिग्नल्स मेरे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कॉर्टेक्स से जा रहे हैं. तो जिससे ये होता है ना कि कोई भी चीज मुझे तो करनी ही नहीं पड़ रही, सब कुछ खुद ब खुद हुई चले जा रहे हैं, ऑन अ क्लिक हुए चले जा रहे हैं, तो मेरा ब्रेन सोना शुरू कर देता है. तो और मेरा सांस लेना और मेरा जागना इस पर डिपेंडेंट है कि मेरा दिमाग जाग रहा हो. तो फिर मुझे कुछ ना कुछ हाथों से करना पड़ेगा, बॉडी से करना पड़ेगा. इसलिए एक बच्चा आप देखें कि वो हाइपर है क्योंकि वो कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी यूं करे. ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली एक्टिवेट हिज सेरेब्रल कॉर्टेक्स ताकि उसके पास से इनहिबिशन. इसलिए इनकी जो दवाइयां होती है ना, दे आर कॉल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट्स. तो वो सीएनएस स्टिमुलेशन का काम हाइपर एक्टिविटी से कर रहा होता है. सो बेसिकली जो उसका जिस्म है वो रोल प्ले करता है, जो रिटलिन करती है, या जो हमारे साइकोस्टिमुलेंट्स जो आजकल यूज होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं. जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड है वो ये काम थ्रू जॉइंट्स कर रहा होता है. जॉइंट्स के अंदर काइनेस्थेटिक सेंसेशंस होती हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, तो वो उनको मूव करता है. जॉइंट्स को जब मूव करता है, छलांगे मारता है, इधर से उधर जाता है, भागता है, या हाथों को यूं यूं करता रहता है, तो वो बेसिकली इट इज हिज अटेम्प्ट टू एक्चुअली ट्रीट हिज अंडर अराउज्ड ब्रेन टू स्टे अराउज्ड. तरीका उसका बेस्ट ये है कि बिल्कुल शुरू से ही, जब वो बच्चा बहुत छोटा है, उस वक्त से ही उसकी कनेक्टिविटी एक वक्त में एक चीज के साथ रखी जाए. द नंबर ऑफ टॉयज दैट यू क्रिएट अराउंड अ चाइल्ड. मैं ऐसे घरों में गया हूं जहां पर टॉयज नहीं है बच्चों के, टॉय रूम्स हैं.
टॉय रूम्स डॉक्टर साहब, सर एक कमरे के अंदर मतलब ऐसे भरे हुए हैं पूरे, और स्टैक लगे हुए हैं उनके। अच्छा, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के अलग-अलग टॉय रूम्स हैं, क्योंकि एक टॉय रूम में उनकी लड़ाई हो जाती है, तो माँ बाप ने उनके एक के अलग टॉय रूम बनाया हुआ है, एक अलग टॉय रूम। और उसी मुआशरे में एक बच्चा है जो कि किसी ढेर पे से उठा के खाना खा रहा है, और उसके पास तो खेलने के लिए वक्त भी नहीं है, टॉय तो एक अलग की बात है। So basically, one thing to be done by a child at one time. एक माँ भी जिस वक्त अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है या बैठी होती है, तो उसको उसने 3 चीजों पर लगाया होता है। एक वो स्क्रीन के ऊपर नगमा सुन रहा होता है या कोई कार्टून देख रहा होता है, ठीक है, एक वो खुद टीवी देख रही होती है, और एक हाथ से वो उसके मुंह में खाना ठूस रही होती है, और एक भाई बच्चे ने उसको पीछे से पकड़ा होता है ताकि वो थू ना कर सके उसको खाने को, और आगे से वो हाथ ना चला सके। तो एक बच्चा एक वक्त में इतनी चीजें कर रहा होता है। सो ये एक्चुअली हम इनकलकेट करते हैं बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी, सो मच सो दैट देयर आर थियरीज नाउ टू सजेस्ट दैट आवर करंट चाइल्ड rearing practices and the social isolation of children are also responsible somewhat in the neurodevelopmental disorders like autism spectrum. So autism spectrum can also consequently occur in children who are isolated because we are social animals. वो जो न्यूरॉन है वो किसी काम का नहीं है जब तक किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट नहीं होता। सो बेसिकली ऑटिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो बिल्कुल ठीक होते हैं, बट दीज न्यूरॉन्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, और देयर इज ओनली अ स्मॉल एरिया इन विच द न्यूरॉन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, एंड दैट बिकम्स अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द ऑटिस्टिक प्रेफरेंस ऑफ अ चाइल्ड. So that even autism is related to the child rearing practices and the kind of world that we have created around our children. Great. And thank you so much, Dr. Mubaddal. You explained it really well. जैसे अभी हमारे आप बात कर रहे थे कि जैसे हमारे पास बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि आजकल बच्चे जो है वो खाना भी नहीं खाते विदाउट स्क्रीन, तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को क्या करना चाहिए इफ अ चाइल्ड इज नॉट हैविंग ये विदाउट। प्रोफेसर नहीं बताएंगे आपको, अब नहीं बताएंगे सर। ये जो सवाल, बच्चे खाना नहीं खाते, अल्लाह अकबर, सारा दिन ये डील करते हैं इन सवालों के साथ सर। ये तो बड़ा ही आसान काम है, वही वाली बात कि आप उनको चॉइस देते हैं तो फिर वो चॉइस लेते हैं ना। आप अगर स्क्रीन नहीं दिखाएंगे तो कितनी देर तक वो खाना नहीं खाएंगे। असल चीज है कि आप ऑल्टरनेट उन्हें क्या दे रहे हैं। आपने उनके साथ प्यार से बातें करनी है और उन्हें थोड़ा सा भूखा भी रखना है। हमारी भी आदत है कि माँ जो है वो बच्चे के पीछे 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 फिर रही होती है कि वो किसी तरीके से उसके मुंह में निवाला डाल दे, और उस बच्चे को पता ही नहीं है कि भूख होती क्या है। मुदत साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि वो जो कूड़े के ढेर में बच्चा बैठा हुआ ना, भूख उससे पूछे, उसे पता है क्या होती है। सो हम अपने घर में, बल्कि मैं तो कई दफा माओ को इस हद तक कह देता हूँ कि आप उसे प्यार करें, आप उसके साथ खेलें, आप उसको किताबें सुनाएं, आप उसको प्लेफुल एक्टिविटीज में एंगेज करें। खाने के टाइम पे सुतेली माँ बन जाए, ये खाना रखा है आप खाइए। वरना सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके साथ एक प्लेफुल एक्टिविटी में खाना खिलाएं, आप उसके साथ बातें करें। यही वो बात है कि जब आपका और उसका ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। एंड अगेन आई रिफर टू व्हाट ही सेज कि एक वक्त में एक काम, खाना खिलाएं, खाने की बातें करें उससे। चलो अच्छा, मैं ये भी जरा सा ऐड तो नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब ने जो कहा उसमें बहुत परफेक्ट बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बहुत सारी खवातीन एक्चुअली वाइकेरियस प्लेजर लेती हैं बच्चों को खाना खिलाने से। यानी कि वो खुद खाना नहीं, उन्होंने डाइटिंग कर रही होती है ना, तो उनको ये तस्वर आता है कि खाना खिलाने में मतलब वो ऐसे लग रहा होता है कि वो खुद खाना खा रही हैं शायद बच्चे को ना, और उनका जो मैयर होता है ना खाने का, वो मैयर होता है जो उनके पेट के हिसाब से होता है। तो उसकी एनाटमी बच्चे की नहीं पता कि भाई उसका पेट तो इतना होता है। क्यों सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बल्कि इसमें एक और कदम आगे जाऊंगा। मैंने अक्सर अपने जो मरीजों के साथ जब मैं देखता हूँ, वो माएँ जो अपने ससुराल में खुश हैं, जो अपने खाविद के साथ और अपने ससुराल के साथ जिनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में बहुत कम है। वो माएँ जो कि उनकी तवज्जो का मरकज ही वो बच्चा है, क्योंकि उनको और कहीं कोई तवज्जो नहीं मिल रही।
एग्जैक्टली। आप कर रही है, ये बहुत बड़ा वजह है। और सो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस और इश्यूज जो है ना, ये बहुत हद तक माओ और पेरेंट्स के होते हैं, जो कि बच्चे के खाने के ऊपर एक्चुअली निकल रहे होते हैं। और वो जो लॉस ऑफ कंट्रोल उनका है ना अपनी जात और अपनी जिंदगी के ऊपर, खवातीन का घरों में, उसके नतीजे में उनको लगता है कि ये एक वाहिद एक्टिविटी है जो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में, और जिस पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वरना ये होता है कि जैसे ही एक माँ अपने बच्चे को अपनी पसंद के कपड़े पहनाने लगती है, एकदम सास आ जाती है, ये क्या पहना रही हो, ये तो नहीं पहनाना, नहीं नहीं वो दूसरा लाकर पहनाओ, वो जो मैंने दिया है वो दी, ये तो तुम्हारी माँ ने दी है, ये क्यों पहना रही हो, ये इसको वो पहनाओ जो मैंने पहनाया है, तुमको दिया है ईद के ऊपर। तो मतलब उसको एक टोटल लॉस ऑफ कंट्रोल है ऑन हर लाइफ, एंड देयरफॉर child is that one subject on which she can actually execute that control। और वो एक बेचारा साल का बच्चा है या 8 महीने का बच्चा है, उसको एक कप भर के रख लेंगे इधर, ये मैंने इसको खिलाना है। तो ये कैसे पता लगेगा आपको कि ये कप इसकी भूख है? तो अगर उसका इतना पेट है और कप जो है वो एक पाव का है जो आप जिसमें से खाना आपने बना लिया है, और ये सारा खिलाना है आपने उस बच्चे को हर सूरत में, ये इस तरह के प्री कंसीव्ड नोशंस और आइडियाज और सोशल इश्यूज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका ताल्लुक बच्चे की भूख से नहीं होता। कोई बच्चा बगैर खाने के जिंदा नहीं रह सकता, और भूख उसका एक हाइपोथैलेमिक फंक्शन है, यानी इनवॉलंटरी फंक्शन है, उसका उसके ऊपर कंट्रोल ही कोई नहीं है। आप उसको बना सकते हैं कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे अपनी भूख के जरिए, लेकिन ऐसा सच उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और एक बच्चे को अगर आप छोड़ देंगे तो वो जरूर खाए। Thank you so much, Dr. Mabadal. We have a very interesting question, जो बहुत पूछा भी जाता है normally कि is it about screen time or content? बोथ, आई थिंक टाइम और कंटेंट दोनों ही मैटर करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये ज़हन में रखें कि कंटेंट डिटरमिन कौन कर रहा है। मैं क्या देखना चाहता हूँ? सुबह बारिश हो रही थी, ठीक है, हल्की हल्की बारिश थी, बहार थी, फूल खिले हुए थे, तो मैं एक बहुत सीरीन किस्म की, ट्रैंक्विल किस्म की म्यूजिक सुनना चाह रहा था, और मैंने बांसुरी लगाई और मैंने सुनी, ठीक है। तो अब जिस तरह की आपकी इंटरनल मेंटल स्टेट होगी ना, उस तरह की आप अपने एनवायरनमेंट में स्क्रीन भी अरेंज करेंगे। अगर आपके अंदर आग लगी हुई है और आप एक वायलेंस लेके अंदर घूम रहे हैं और आपके अंदर एंगर और एग्रेशन भरा हुआ है, तो वाइकेरियसली मैं उसके अंदर, जो स्क्रीन के ऊपर एक बंदा 18 लोगों को गोलियां मारी जा रहा है और धड़ाधड़ और उनको गिराई जा रहा है और उनको तबाह तबाह कर रहा है, मैं उसको प्रिफर करूंगा, बिकॉज वाइकेरियसली मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस हीरो के अंदर। सो अंडरस्टैंड, जो मैंने बात की थी ना माय मिसेस की, और वो बहुत शुरू में जो शायद आपको उस वक्त फिलोसॉफिकल लग रही होंगी, वो ये थी कि पहले ये अंडरस्टैंड करें कि जो मेरी अंदर की दुनिया है वो मैं दुनिया बाहर वर्चुअली क्रिएट करता हूं। तो अगर काम करना है तो मेरे अंदर की दुनिया पे करो, फिर मेरी बाहर की दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। Thank you, Dr. Mabadal. We have another question. What is the role of parents? How can they learn? Can they have any training or guidance? डॉक्टर साहब, देखिए, अगेन ये बात है, जमाना तब्दील हो गया। पहले ये तमाम की तमाम गाइडेंस हमें अपने माँ बाप, अपने नाना नानी, दादा दादी से मिला करती थी। जॉइंट फैमिलीज में पेरेंटिंग कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं करती थी। पेरेंटिंग ये आज का मामला है और ये नया आया है, और उसकी वजह यही है कि अब वो जो हमारे सोशल कल्चरल बॉन्ड्स थे वो छूटे होते जा रहे हैं। वो फैमिलीज अब नहीं है, तो लिहाजा माँ बाप को सीखना पड़ रहा है कि वो माँ बाप कैसे बने। दूसरा ये है कि हमने अपने आप को बहुत परफेक्ट पेरेंट्स बनाने की कोशिश कर दी है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो हम नहीं बन सके वो बने, हमेशा से हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन हमने उसके म्यार इतने बुलंद कर दिए कि उसके ऊपर हम खुद पूरे नहीं उतरते, और लिहाजा हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, उसको फिजिकल जो मराहत भी है वो देना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको मेंटली इतना टेंस कर देते हैं कि वो बच्चे को समझ ही नहीं आती कि उसको करना क्या है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेरेंटिंग इज अ प्लेजर। बच्चे को सबसे जो जरूरी चीज है आपके लिए वो ये है कि बच्चे के साथ एंजॉय करें, एंड लेट द चाइल्ड एंजॉय यू। सर, ब्यूटीफुल।
एब्सोल्युटली, कुडंट एग्री मोर। मुझे एक छोटा सा सवाल याद आ रहा है जो मेरी बेटी ने मेरे से बहुत छोटी उम्र में किया था। तो वो मेरे साथ आके अगली सीट पर बैठने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने कहा उसको बीवी का इसको को पीछे बैठे। हम नए नए बाहर से आए थे उस जमाने में, तो हमें बड़ा शौक था कि वही वाले कायदे कवानीन चले। तो उसने कहा कि क्यों आप मुझे आगे नहीं बिठाने, कहा अनसेफ है। और उसने कहा लेकिन मैं तो गाड़ी चलाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटा वो आप 18 ईयर्स की जब होंगी फिर आप गाड़ी सीखेंगी, और फिर आप उसका एक लाइसेंस मिलेगा, फिर जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर आप गाड़ी चलाइएगा। तो उसने एक बड़ा मासूम सा सवाल किया। शी वाज आई थिंक 5 years old एट दैट टाइम। उसने कहा ये जो गाड़ी चलाने के लिए तो आपको 18 साल इंतजार करना पड़ता है और फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, बच्चे पैदा करने और बड़ा करने के लिए भी कोई लाइसेंस होता है क्या? उसकी भी कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? तो ये एक बड़ा मासूम सवाल था, लेकिन मैं तो खैर ऑब्वियसली मुस्कुरा दिया उससे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि एक्चुअली पेरेंटिंग इज ए स्किल। टुडेज पेरेंटिंग इज अ स्किल। यस्टरडेज पेरेंटिंग वाज आल्सो अ स्किल। सिर्फ ये थी कि वहां पर आप ऑस्मोटिकली पेरेंटिंग सीख लेते थे, जैसे सर ने कहा है, आपने इर्द गिर्द पेरेंटिंग होते देखते थे, आप ऑस्मोटिकली उसे सीख लेते थे। अब आपके पास देखने को कोई नहीं है सिवाय ड्रामों में। ड्रामों में ही देख सकते हैं ना आप, या फिल्मों में देख सकते हैं, या आप गूगल से पूछ सकते हैं। तो लेकिन सीखनी तो पड़ेगी आपको। कहां से सीखते हैं ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ना हो कि आप पेरेंटिंग तो सीखें अमेरिका से, बच्चे सऊदी अरेबियन बनाना चाहें। तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि बाज का ये होता है कि आप जो टूल्स यूज कर रहे होते हैं वो कहीं और के होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो कुछ और होती है। तो जो सेवियां बनाने की मशीन होती है उससे रोटियां नहीं बन सकती होती। बस ये ध्यान में रखें। राइट। अच्छा, अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, वो आपको फोन पे कार्टून लगा देते हैं कि बच्चे जो है वो रो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लगा दो, कोई बात नहीं, वरना बच्चा और रहेगा। तो इससे फिर क्या करें? अगर आप नहीं लगा के देते तो बड़ों का मूड खराब हो जाता है। तो उससे कैसे किया जाए कि आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे डील करें? अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना जी, उनके साथ आपने कोई बॉन्डिंग नहीं होने दी। एक्चुअली जो बेस्ट पेरेंट्स है ना वो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। बच्चे को जो पेरेंटिंग चाहिए इनफैक्ट वो ग्रैंड पेरेंटिंग है, इसलिए इसे ग्रैंड पेरेंटिंग कहते हैं। ग्रैंड क्या होता है? समथिंग सुपर। जब आप किसी चीज की सुपरलेटिव यूज करते हैं तो आप उसको कहते हैं ग्रैंड। आप किसी होटल में जाएं और वहां बहुत शानदार लेआउट हो, आप कहते हैं व्हाट अ ग्रैंड लेआउट। सो पेरेंटिंग की जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है ना वो ग्रैंड पेरेंटिंग है, क्योंकि वो अनकंडीशनल होती है। उसके अंदर अब अनकंडीशनल होता है, उसके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि डिस्कनेक्ट है बिटवीन द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड पेरेंट्स, और उनको कभी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं देते। हम्म। ठीक है, तो इसलिए उनकी दोस्ती नहीं, जितनी गहरी दोस्ती ग्रैंड चिल्ड्रन की ग्रैंड पेरेंट के साथ हो सकती है उतनी पेरेंट के साथ नहीं हो सकती। बहुत जमाना पहले एक ड्रामा बना था, मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा कि आप वो ड्रामा यूट्यूब पर है, वो देखें। उसका नाम था दादा और दिल दादा। दिस वॉज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड सन एंड द ग्रैंड फादर। It's a beautiful relationship. So if the parents let the grandparents and the grandchildren interact with each other, they form a beautiful symbiotic relationship. क्योंकि वो असल में दोनों बच्चे ही होते हैं, एंड बच्चे बहुत अच्छा डील करते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू डॉक्टर मुबल्लर। कार्टून की जरूरत नहीं है, ये साथ छोटे पे देखेंगे आप। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, किसी ने कमेंट किया है कि माय यंगर डॉटर कॉपीज ऑल माय हैबिट्स। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बड़ों को भी अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम? क्योंकि ऑब्वियसली उनका कहना ये है कि बच्चे हमें कॉपी करते हैं। बच्चे हमें कॉपी करते हैं ना, तो सिंपल है। मैंने तो अभी आपको वो तस्वीर दिखाई थी मिरर वाली कि और ये थियरी ऑफ माइमेसिस पढ़ने के लिए कहा था। थियरी ऑफ माइमेसिस ये कहती है कि एक जैसे हो जाते हैं बच्चे, एक्चुअली पेरेंट्स को कॉपी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों में। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, एनी अथॉरिटी फिगर अराउंड देम, एनी फिगर दैट्स पावरफुल, दैट्स बिगर, दैट्स स्मार्टर, दैट मूव्स, दैट कैन चेंज देयर लाइव्स,
और उसको वो बच्चा कॉपी करने लगता है। तो साफ जाहिर है अगर आप इसके हवाले से कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो घर में, तो फिर ये डबल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं चलेंगे। कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त वो हर घर में है। आपके लिए और आपकी बेगम के लिए एक कायदे कवानीन है, बड़े भाई के लिए एक कायदे कवानीन है, बहन के लिए दूसरे कायदे कवानीन है, एक ही घर में। लड़कियों के लिए और कायदे हैं और लड़कों के लिए और कायदे हैं। सो ये जो इस तरह की नॉन होमोजेनस इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशंस होती है घर में, इट इज अ फेलियर, इट्स अ नॉन स्टार्टर। थैंक यू डॉक्टर मुबद्दल। अच्छा, हमारे पार्टिसिपेंट नदीमा जफर ने हैंड रेज किया है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। And if we can have this as our last question, I think. जी 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 हम सुन रहे हैं जी, आप कहिए जो भी सवाल है। करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर सवाल पूछिए। मैम नदीमा जफर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? All right. Thank you so much, Dr. Mubarak and Dr. Naeem. It was truly a very insightful session. And now I would like to invite Dr. Naeem for the key takeaways. मैं जब ये शुरू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि एंड पे आपने की टेकअवेज देने हैं। मेरा नहीं ख्याल हमें कोई की टेकअवेज देने की जरूरत है, ये तो हमने कुछ हासिल किया है तो वो हमें लेके जाना है। प्रॉब्लली जो आई गेस द बेस्ट थिंग इज कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोफेसर मौदर एंड बिकॉज ऑफ हिज इंसाइटफुल डिस्कशन, हमारे पास एक तो बात आ गई ना कि हमने मुल्ला नहीं बनना। दूसरी बात ये आ गई कि हमने बच्चे के साथ बच्चा बनना है और उसके साथ लेके चलना है। जहां भी पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम पेरेंटल इन्फोर्समेंट्स की जो बातें करते हैं ना, वो बहुत छोटे बच्चों के लिए करते हैं। बच्चे जरा भी बड़े हो जाएं तो फिर जिस तरह मोहद्दद साहब ने कहा कि हमें उनके साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। द ओनली थिंग इज कि वंस दे मेक अ डिसीजन और आप उससे लिखवा लेते हैं कि हमने ये फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम पे कर लें या खाने पीने कर लें या बाहर जाने के कोई भी फैसले, सारे घर के फैसले उनके साथ मिलके किया करें। लेकिन फिर एंड पे आपने जब वो उस फैसले से इनहराफ करेंगे, जब वो लाजमी करेंगे, तो अपने याद कराते रहिएगा, बेटा आपने तो ये कहा था, तो अब इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। बट वो भी आपका आमतौर पर उनके साथ दोस्ताना भी होना चाहिए। अच्छा चलो फिर ऐसे कर लेते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि जितना हम बच्चों को मौका देंगे कि वो अपने जहन को खोलें, लोगों से बातें करें, अपने प्यारों के साथ प्यार कर सकें और प्यारे उन्हें प्यार कर सकें, स्क्रीन टाइम का जो जो अफरीद है जिसे हम कहते हैं, वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा और हम उसके बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। सर, आप अगर कोई आखिरी मशवरा देना चाहें, then we will close this discussion. Thank you very much for giving me the opportunity. I'm truly grateful. Thank you so much, Dr. Mubarak and Dr. Naeem, for this insightful session. On behalf of Pehchan organization, I thank all the participants for joining us, and special thanks to our key speaker and our moderator for sharing their valuable insights. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz.